الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی مکرم رحمت عالم ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت ختم نبوت کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام دے کر کے ہم انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت بخشی، یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا، مکمل کیا، اور دین حنیف، دین توحید، دین اسلام جو آپ کو عطا کیا، آپ پر اپنی نعمت اس کے ذریعے سے مکمل فرما دی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا۔ قرآن پاک میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو شخص بھی آپ کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہے۔ خاتم النبیین، خاتم ختم کر دینے والے ہیں، النبیین نبیوں کے سلسلے کو، اور ظاہر ہے کہ یہ جو رسول ہوتا ہے وہ پہلے نبی ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے مقام رسالت سے شرف یاب کیا جاتا ہے۔ تو جو نبی ہی نہیں ہوگا اس کے رسول ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو جب نبوت کا سلسلہ ختم ہے تو رسالت کا بھی سلسلہ ختم ہے۔ اور اسی طرح سے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں مثال دے کے بات کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ واکملہ الا موضع لبنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس کو بہت حسین و جمیل بنایا، اسے بہت مکمل بنایا، مگر اس گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ آتے، اس جگہ پہنچتے، اس کا چکر لگاتے اور اسے دیکھ کر تعجب سے کہتے، کیا بات ہے، ہم نے اس گھر سے زیادہ حسین و جمیل اور مکمل گھر نہیں دیکھا سوائے اس اینٹ کے۔ یہ اینٹ کی کمی، اگر یہ اینٹ رکھ دی جائے تو پھر یہ گھر مکمل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، تو پھر میں عمارت نبوت کا وہ آخری اینٹ ہوں جس کے ذریعے سے نبوت و رسالت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے۔
ये हदीस सही बुखारी में 3535 नंबर पर मौजूद है। इसी तरह से इसी माने में जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक और हदीस आई है, और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की ये तवील हदीस, इसमें भी आपकी खत्म नबूवत की दलील मिलती है। क्या हदीस है, आइए पढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया और आपके लिए दस्त का गोश्त बढ़ाया गया और ये आपको बहुत पसंद था। आपने उसमें से नोच करके खाया और फिर आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं तमाम लोगों का सरदार हूंगा, और क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से लोगों को इकट्ठा फरमाएगा एक हमवार जमीन में, जहां के पुकारने वाला अपनी आवाज तमाम लोगों तक पहुंचा सके और देखने वाला अपनी आंख से सबको एक साथ देख सके। इस तरह से लोग एक हमवार जमीन में सब के सब इकट्ठा हो जाएंगे, सूरज करीब आ जाएगा और लोगों में गम और फिक्र और तकलीफ ऐसी शदीद होगी कि लोगों को जिसके उठाने की, जिसके बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होगी। लोग एक दूसरे से कहेंगे, हम किस तकलीफ को पहुंचे हुए हैं, क्या कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो आज हमारे रब और हमारे मालिक से सिफारिश कर सके कि जल्द से जल्द हिसाब किताब हो जाए और इस मुसीबत से खातिमा मिल जाए। ऐसी सूरत में फिर लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि अय आदम, आप हमारे बाप हैं, आप अबुल बशर हैं, सारे इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथों से पैदा फरमाया है और अल्लाह ने आपके अंदर अपनी रूह फूंकी है, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आपको सजदा करें। आज हम इस कदर परेशान हैं, आप अपने रब से हमारे लिए सिफारिश कीजिए, शफाअत कीजिए। क्या आप देखते नहीं कि हमारी क्या हालत बन गई है? क्या आप नहीं देखते कि हम किस मुसीबत में फंसे हुए हैं? आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मेरा रब आज जिस कदर गजबनाक है, इससे पहले न उस तरह कभी गजबनाक था और न आइंदा इस तरह कभी गजबनाक होगा। और मेरे रब ने मुझे दरख्त का फल खाने से मना फरमाया था और मैंने नाफरमानी कर ली थी। नफ्सी नफ्सी नफ्सी, आज तो मुझे सिर्फ अपनी जान की फिक्र है, मैं किसी और के लिए कहां सिफारिश कर सकता हूं? जाओ किसी और के पास जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप पहले रसूल हैं, रूए जमीन की तरफ अल्लाह ताला ने आपको पहला रसूल बना करके भेजा और अल्लाह ताला ने आपको शुक्रगुजार बंदे का नाम दिया। आज आप अपने रब से हमारी शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हमारी क्या हालत है और हम किस मुसीबत में पड़े हुए हैं? तो वो भी यही जवाब देंगे कि आज अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस कदर गजबनाक है, उससे पहले न इतना कभी गजबनाक था और न आइंदा कभी इतना गजबनाक होगा। अल्लाह ने मुझे एक दुआ दी थी जिसके कबूल करने का वादा फरमाया था, मैंने उसे अपनी कौम के खिलाफ कर डाला। आज तो मुझे अपनी जान की फिक्र है, जाओ किसी और के पास जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनांचे सारे लोग फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ऐ इब्राहिम, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह ताला ने रूए जमीन वालों की तरफ आपको अपना उलुल अज़्म रसूल बना के भेजा था, अपना खलील बना के भेजा था। आज आप अपने रब से हमारे लिए सिफारिश कीजिए। क्या आप हमारी हालत देखते नहीं? क्या हमारी मुसीबत आप देखते नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही जवाब देंगे कि मेरा रब आज जिस कदर गजबनाक है, इससे पहले इतना गजबनाक कभी नहीं था और आइंदा इस कदर गजबनाक कभी नहीं होगा। और मैंने अपनी जिंदगी में 3 झूठ बोले थे और उसके बाद उसकी हदीस में तफसील बयान की गई है। हम उससे आगे बढ़ते हैं, आज हमारा ये मौजू नहीं है। अलमुहिम इस हदीस को मुकम्मल पढ़ते हैं।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज तो मुझे अपनी जान की फिक्र है, नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ, मुझे तो अपने आप की फिक्र है। और उसके बाद वो मशवरा देते हुए कहेंगे कि जाओ मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रिसालत देकर और आपसे गुफ्तगू फरमाकर तमाम लोगों पर आपको फजीलत बख्शी, आज आप अपने रब से हमारे लिए शफाअत कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम सब की हालत क्या हो गई है? तो मूसा अलैहिस्सलाम जवाब में कहेंगे मेरा रब आज इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले इतना गुस्से में कभी न था और ना ही आइंदा कभी इस कदर गुस्सा होगा। और मैंने एक बेगुनाह को जान से मार डाला था, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे उसको जान से मारने की इजाजत नहीं थी, मुझे उसकी कत्ल का हुक्म नहीं दिया गया था। आज तो मुझे अपनी जान की फिक्र है, जाओ किसी और के पास जाओ। चुनांचे लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उसके बाद में जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग पहुंचेंगे तो कहेंगे कि ऐ ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह का कलेमा हैं जिसे अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्का किया था, आप अल्लाह की रूह हैं और आपने बचपन ही में लोगों से गुफ्तगू फरमाई थी। आज आप अल्लाह से हमारे लिए शफाअत कीजिए। क्या देखते नहीं कि हमारी हालत क्या हो गई है? ईसा अलैहिस्सलाम भी वही बात कहेंगे जो सारे अंबिया कहते रहे कि आज अल्लाह तबारक व तआला इस कदर गुस्से में है, इस कदर गजबनाक है कि इससे पहले न कभी इतना गजबनाक था और न आइंदा कभी इतना गजबनाक होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम के किसी गुनाह का इस हदीस में तस्करा नहीं किया गया, किसी चूक का, किसी कमी का जिक्र नहीं किया गया। और उसके बाद में वो कहेंगे कि जाओ किसी और के पास जाओ, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। चुनांचे तमाम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आके कहेंगे वयक़ूलून, कहेंगे या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया। ये है मौज़े इस्तिदलाल। लोग कहेंगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप तमाम नबियों का सिलसिला खत्म करने वाले हैं। आपके जरिए से सिलसिले नबूवत पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद उसका दरवाजा बंद हो जाएगा, कोई नहीं उसके बाद आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। अंता रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप नबियों का सिलसिला खत्म करने वाले हैं, आखिरी नबी हैं। वक़द गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, और अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा दिए हैं। आज आप अपने रब से शफाअत कीजिए हमारे लिए। क्या आप देखते नहीं कि हम किस हालत में हैं और हमारी क्या दुर्गत बनी हुई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तो मैं चल पड़ूंगा और अर्श के नीचे पहुंचूंगा और वहां अपने रब के लिए सजदे में गिर जाऊंगा, अपने रब के लिए सजदे में गिर जाऊंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी तारीफें और अल्लाह की ऐसी ऐसी सना, ऐसी हसीन सना, ऐसी खूबसूरत तारीफें मुझे अल्लाह ताला सिखाएगा जो मुझसे पहले किसी ने जाना नहीं होगा। और अल्लाह ताला को अपनी तारीफ बहुत पसंद है, अपनी हम्दो सना बहुत पसंद है, अपनी अजमत का बयान बहुत पसंद है, अपनी तस्बीह और तहमीद और तकबीर और तहलील बहुत पसंद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सजदे में गिरूंगा और सजदे में तारीफें करूंगा। तो दोनों चीजें अमली एतबार से अल्लाह को सजदा सबसे ज्यादा पसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया है कि बंदा जब सजदे में होता है तो अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है, क्योंकि ये तवाज़ो बल्कि ये जिल्लत की और बंदगी के इजहार की और आजिजी की निहायत मुकम्मल और आखिरी शक्ल है कि आदमी सजदे में गिर जाता है और वो पेशानी जो अल्लाह ने बुलंद बनाई है उस पेशानी को और उस नाक को जो ऊंची रखना चाहता है मिट्टी में रगड़ देता है, मिला देता है। तो अल्लाह ताला को आजिजी की यह हालत बहुत पसंद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर सजदे में रहेंगे और कौली तौर पर अपनी जबान से अल्लाह तबारक व तआला की
बेशुमार तारीफें और हम्दो सना फरमाएंगे यहाँ तक कि अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता वशफा तुशफ़ा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे। देखिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अजमत का कितना ख्याल रखते हैं। कैसे बदबख्त हैं वो लोग जो अल्लाह की अजमत की कदर नहीं करते और कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कभी और किसी को अल्लाह के बराबर कर देते हैं या अल्लाह से बड़ा कर देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला की तरफ से इज़्न मिलेगा, इजाजत मिलेगी, कहते हैं तब मैं सर उठाऊंगा और उसके बाद मैं कहूंगा उम्मती या रब्बी उम्मती या रब, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत। तो उसके बाद कहा जाएगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में से उन लोगों को जिन पर कोई हिसाब नहीं है, जन्नत के दरवाजों में से दाएं दरवाजे से जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए और वो बकिया दरवाजों में तमाम लोगों के साथ शरीक हैं, जिसमें से जाना चाहे वो जा सकते हैं, लेकिन आप उनको दाएं जानिब से खास तौर पर ले जाकर के दाहिने दरवाजे से उन्हें जन्नत में दाखिल कर दीजिए। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नत के दरवाजों के दो पट के दरमियान इतनी उसात है, इतनी मसाफत है, इतनी कुशादगी है, जैसे मक्का और हिमयर या मक्का और बुसरा, ये जो दो शहर हैं, इन दो शहरों के दरमियान जितनी मसाफत है, इतनी मसाफत और इतनी चौड़ाई और इतना कुशादा वो दरवाजा होगा। ये हदीस सही बुखारी में 4712 नंबर पर और सही मुस्लिम में 501 नंबर पर है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस हदीस में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का सिलसिला मुकम्मल करने वाले हैं, खातमुल अंबिया हैं। और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस जो के सही मुस्लिम में 1195 नंबर पर मौजूद है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबियाए बिसित, मुझे नबियों पर 6 चीजों के जरिए फजीलत दी गई। फिर आपने उन चीजों का बयान फरमाया। आपने कहा मुझे जामे कलिमात अता किए गए, रोब के जरिए मेरी मदद की गई, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया गया, मेरे लिए सारे रुए जमीन को पाकी हासिल करने का जरिया और मस्जिद बना दिया गया, और मुझे सारी इंसानियत की तरफ, सारी मखलूक की तरफ मुझे रसूल बना के भेजा गया और मुझ पर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया गया। वह खुतिमा बियन नबियून, मुझ पर नबियों का सिलसिला खत्म किया गया। तो खत्म नबूवत का बयान इस हदीस में भी है और इसी माने की और भी हदीस आई है। और उसके बाद एक और हदीस की तरफ हम चलते हैं जो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया इन्ना रिसालता वन नबुव्वत क़द इनक़तअत, कि रिसालत और नबूवत का सिलसिला तो अब खत्म हो गया। फला रसूल बादी वला नबी, मेरे बाद अब ना कोई नबी आने वाला है और ना कोई रसूल आने वाला है। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फशक्क़ ज़ालिका अलन नास, तो लोगों पर ये बात शाक गुजरी, क्योंकि ये आसमान और जमीन का रिश्ता होता है और इसमें आसमान से अल्लाह की रहमत वही की शक्ल में नाजिल होती है जिससे इंसानों को जिंदगी और हयात मिलती है। तो इस सिलसिले का मुनक़ते हो जाना ये एक गिरा चीज है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये सिलसिला खत्म किया तो नबूवत की तालीमात की हिफाजत फरमाई। आप आखिरी नबी हैं और आपकी तालीमात पूरी तरह महफूज हैं, रोशनी पूरी तरह महफूज है। आप अगर से दुनिया से चले गए, बकिया अंबिया, पिछले अंबिया की तरह नहीं कि वो दुनिया से चले गए तो धीरे धीरे
کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد ان کی تعلیم میں تحریف کر دی گئی اور ان کو بدل دیا گیا اور اس کی حفاظت نہیں کی جا سکی. نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم و ہدایت کو اور آپ پر جو وحی نازل فرمائی تھی جس میں لوگوں کے لیے زندگی اور سعادت ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنِ الْمُبَشِّرَاتِ، لیکن ایک سلسلہ نبوت کے حصے کا جو ایک جز ہے وہ باقی رہے گا. ایک دم 100% جو ہے، جو آپ مشقت کو آسان بنانے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَكِنِ الْمُبَشِّرَاتِ، لیکن خوشخبری دینے والی چیز. قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رؤیا الرجل المسلم، ایک مسلمان آدمی کا سچا خواب، ایک مسلمان آدمی کا سچا خواب. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزیں جو ہے بتا دیا کرے گا، جیسے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت کچھ بتاتا ہے اور بہت کچھ کی اطلاع دیتا ہے. وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ، اور یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ بہت صاف انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت و نبوت اب منقطع ہو چکے ہیں، ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. یہ حدیث مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. 13,860 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. ایسے ہی 13,824 نمبر پر بھی یہ حدیث موجود ہے. اور اسی طرح سے امام زہری بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے والد جبیر ابن مطعم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله به الكفر وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کچھ نام ہیں. میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، میرا ایک نام ماحی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو محو کر دے گا، کفر کو مٹا دے گا. اور میرا ایک نام حاشر ہے کہ میرے قدموں پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. میرے قدموں کے مطابق پھر لوگوں میں فیصلہ ہوگا کون آپ کے نقش قدم پہ چلا اور کون آپ کے نقش قدم سے ہٹا. یا اسی طرح سے آپ کے پیچھے پیچھے ساری دنیا ہوگی، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور سب آپ کے پیچھے ہوں گے. تو سارے لوگ آپ کے قدموں کے پیچھے، آپ سب کو اکٹھا کیا جائے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں، سب سے آخری نبی ہوں. اس کی شرح بھی یہ حدیث صحیح بخاری میں 4,896 نمبر پر موجود ہے اور اس کی شرح بھی موجود ہے وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. عاقب اس کو کہتے ہیں. صحیح مسلم میں 6,251 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے جس میں عاقب کی یہ تشریح ہے، ناموں کا ذکر ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ عاقب وہ شخص ہے، یا عاقب نام کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور جب نبی نہیں آئیں گے تو رسول بھی نہیں آئیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں. ختم النبیین، خاتم النبیین اور خاتم الرسل. تو خاتم النبیین کہہ دیے تو خاتم الرسل خود بخود ہو گیا، کیونکہ رسول پہلے نبی ہوتا ہے پھر رسول ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ آخری روایت، آج کے درس کی آخری روایت پڑھ کر اس پر درس کو مکمل کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں 3,555 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 4,879 نمبر پر ہے. فرات القزاز بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حازم سے سنا، وہ کہا کرتے تھے کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا ہوں 5 سالوں سے. 5 سال ان کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی.
وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ انبیاء ان کی سیاست کیا کرتے تھے. جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو اس کے بعد دوسرے نبی آیا کرتے تھے، اور میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے خلیفہ ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے. فَيَكْثُرُونَ، وہ بڑی کثرت سے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ایسے موقع پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے کی جس سے تم نے پہلے بیعت کی ہو اس کی بیعت کو مکمل کرو، اس کی بیعت کو وفا کرو، اور اس کے بعد جس سے بیعت کی جائے اس طرح سے جس چیز کی تم بیعت کرو اس کی تکمیل کرو، اور انہیں ان کا حق دو، اور ان کی رعایا کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد معاملہ یہ ہے، شان یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو آج کے درس میں یہ بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی امتیازات اور آپ کے انفرادی شان میں سے ایک شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اطاعت کرنے اور اس کی ایمان اور اطاعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اولیاء و صالحین اور شہداء کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.